Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of grade 10. Welcome to your chemistry class. Today's topic is related to types of salts, यानी नमक की अक़साम. This topic is given in chapter number 10, acid, bases and salts, on page number 40 and onwards. So today's topic, types of salt, is actually related to different or main classes of salts, and in the form of flow sheet you can write down these main classes of salts. Starting from the first class is called the normal or neutral salts. First category or class of or type of salt is normal or neutral salts. Then the second type is called acidic salts. Third type of salt is called basic salts. The fourth type is called, you can also write, basic salts are also called alkaline, and the fourth type is called double salts, which are the combination of two salts together. Then we have another type, number 5, mixed salts. And the last category, that is the sixth type of salt, is called complicated salt. It's very complicated, so name is given to this is complex salts. So here are six main classes of salts in front of you. So first type of salt is called normal or neutral salts, and here you will write down the definition for the first heading, or as first heading definition. What are normal or neutral salts? A salt which is formed by the total replacement. You have to write down the full definition. Total replacement of ionizable hydrogen ions. Which are present in an acid that are replaced by a metallic ion or a positive metal ion. Or ammonium ion, NH4, having positive charge on it. So normally the name given to these salt is normal or neutral salt. Why they are called neutral salt? Because these salts are not affected by the litmus. There is no effect of litmus paper or litmus solution on these type of salts. So these salts are neutral to litmus. That's why name given to them are neutral salts. So total replacement of ionizable hydrogen ion means, we will explain you this by help of some of the examples. So some examples of neutral salts are, starting from hydrochloric acid plus potassium hydroxide, a simple neutralization reaction. So during this neutralization reaction, in which an acid reacts with base, it forms salt and water. So according to the first part of definition, total replacement of ionizable hydrogen ion in acid mean that in an acid you can see the hydrogen ion which has positive charge on it. So what is the meaning of ionizable? Because they have these hydrogens have the ability to ionize themselves in water when dissociate in water. जब आप एसिड्स को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये एबिलिटी होती है किसी भी एसिड या बेस की कि वो पानी में आयनाइज हो जाते हैं. आयनाइज मीन अपने आयन्स में टूट जाते हैं. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप पानी में डिसोसिएट करते हैं, पानी में हल करते हैं, तो ये अपने रिस्पेक्टिव आयन्स यानी हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन यानी Cl नेगेटिव में टूट जाता है. इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है आयनाइजेबल होना, आयनाइज्ड होना.
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसी तरह अपने अंदर क्या रखते हैं, हाइड्रोजन आइंस रखते हैं जिनमें आयनाइजेबल प्रॉपर्टी होती है। अब इस आयनाइजेबल हाइड्रोजन को जब कोई दूसरा कौन सा किसी एसिड में मौजूद हाइड्रोजन आइंस को जब कोई दूसरा पॉजिटिव मेटल जो कि ऑब्वियसली बेस में मौजूद है या कोई दूसरी ऐसी बेस जिसमें अमोनियम आयन मौजूद है, अगर वो रिप्लेस कर दें, उनको टोटल वहाँ से हटा दें, टोटल रिप्लेसमेंट मीन वहाँ से मुकम्मल तौर पे हटा दें, तो इस तरह से जो सॉल्ट्स तैयार होते हैं उनको नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स कहते हैं। अब ये देखिए कि किस तरह से हम फॉर्म करेंगे। क्लोराइड पे होता है नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम यहाँ पर मेटल है, इस पे पॉजिटिव, तो ये बन गया आपका पॉजिटिव मेटल आयन, यहाँ से ये क्लियर हो गया। एंड हाइड्रो ऑक्साइड पे होता है नेगेटिव आयन। अब रिप्लेसमेंट देखिए कि कैसे होगी। यहाँ से क्या हुआ, बाएं पॉजिटिव मेटल आयन ने यानी पॉजिटिव मेटल आयन ने यहाँ पर हाइड्रोजन को टोटल रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह पर खुद आ गया। किस तरीके से, पोटेशियम हाइड्रोजन को हटा के उसने क्लोराइड के साथ कंपाउंड बना दिया, पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्ट बन गया। अलॉन्ग विद इट यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होके कहाँ गया, पोटेशियम के साथ जो हाइड्रो ऑक्साइड था उसके साथ कंबाइन होकर उसने क्या बनाया, HOH था, तो HOH का क्या मतलब है, वाटर बन गया। सो वन सॉल्ट इज फॉर्म विच इज़ अ नॉर्मल सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट एंड अदर वन इज़ वाटर। So this is a kind of a type of neutralization reaction. So normal salt बना इसमें और water बना। अब normal salt पर को अगर हम for example हमने ये salt तैयार कर लिया, इसका solution बना लिया और अब हम इसे टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद इसमें लिटमस ऐड करते हैं। लिटमस इंडिकेटर भी होता है आपको पता होगा। तो लिटमस इंडिकेटर के तौर पे हमने इसमें ऐड किया, क्या होगा कि नॉर्मल सॉल्ट के ऊपर लिटमस का कोई असर नहीं होगा, जिससे ये इंडिकेट हो गया कि जब इंडिकेटर्स इन पर कोई असर नहीं डालते तो इस तरह के सॉल्ट्स को हम न्यूट्रल सॉल्ट्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पोटेशियम क्लोराइड क्या है, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूट्रल सॉल्ट। Now some other examples of neutral salts are related to some other examples of neutralization reaction or reactions of neutralization process, like H2SO4 when combines with zinc oxide, which is a metallic oxide, then what happens, zinc being a positive metal ion replace hydrogen ion, two hydrogen ion from or present in an acid that is sulfuric acid to form क्या चीज़ फॉर्म होगी, जिंक अलॉन्ग विथ सल्फेट, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, जिंक सल्फेट प्लस नाउ हाइड्रोजन यहाँ से जो रिमूव हुए वो कहाँ जाके कंबाइन हो रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म वाटर। सो सिंपल रिएक्शन एंड जिंक सल्फेट हियर इज़ अ नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। Now another example, H3PO4 phosphoric acid. Phosphoric acid is combining with sodium hydroxide, which is a base, and during this reaction of neutralization what happens, sodium being a positive metal ion replaces ionizable hydrogen ion, which are 3 in number here. So how many sodium are required for this? 3 sodium ions are required to replace 3 hydrogen ions. So after replacement, sodium takes the place of hydrogen ions and form a salt which is called Na3PO4, that is sodium phosphate, plus 3 water molecules are also normally formed after balancing the equation. So here in this case is normal salt is sodium phosphate. Your next and last example is related to the nitric acid, which is an acid reacting with ammonium hydroxide. Now the second part of your definition tells about that ammonium ion can also having ability or can
ability to remove ionizable hydrogen ions from an acid. How? These ammonium ions are replacing the hydrogen ions and take the place of this hydrogen ion along with nitrates to form ammonium nitrate. Along with the remaining thing which is left is HOH, so it is water. So this is another example of normal salt, and normal salt in this case is ammonium nitrate. So these are some of the examples of normal salts. Second type of salts are called acidic salts. Acidic salts. Now acidic salts are those salts which are formed by the partial. So definition will become definition. These salts are formed by the partial replacement, not the complete or total replacement, only the partial replacement. Of which thing? Partial replacement of an ionizable or a replaceable hydrogen ions of an acid by a positive metal ion. By a positive metal ion. Clear? So definition के according acidic salts क्या हैं? जिनमें एसिड में मौजूद हाइड्रोजन आयंस जो आयनाइजेबल होते हैं उनकी जगह, रिप्लेसेबल मतलब उनकी जगह पॉजिटिव मेटल आयन ले ले और इसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट के नतीजे में जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा. नाउ इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. इसको आप एग्जांपल से समझें, फिर हम डेफिनेशन को दोबारा आपके सामने क्लियर करेंगे. फॉर एग्जांपल आपके सामने एक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और आप इसका रिएक्शन करवा रहे हैं किसी बेस या एल्कली के साथ. सो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ऑलवेज. तो हम इसके साथ बनाएंगे सॉल्ट एंड वाटर और जो सॉल्ट यहाँ बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने ये देखना है कि हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस कौन से हैं. अब एसिड के अंदर जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है वो H2 है, यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयंस हैं. क्लियर? और जो हमारा सेकंड पार्ट है दैट इज़ पॉजिटिव मेटल आयन, वो हमारा बेस यानी एल्कली में मौजूद है जिस पर हमारे पास कौन सा चार्ज है पोटेशियम पे +1 और पॉजिटिव चार्ज. अब अकॉर्डिंग टू दिस हमने क्या करना है, हमने ये करना है बेटा कि सॉल्ट्स की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं एसिडिक सॉल्ट की, और एसिडिक सॉल्ट में जब हम एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन को मुकम्मल तौर पे रिप्लेस ना करें किसी दूसरे मेटल या पॉजिटिव मेटल आयन से, तो इस तरह का जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक सॉल्ट होता है. कैसे? अब पोटेशियम ने क्या किया, हाइड्रोजन की जगह आके वो लेना चाह रहा है. ठीक है, पोटेशियम यहाँ से रिमूव होके हाइड्रोजन के साथ आना चाह रहा है. अब उसको यहाँ से रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन को 2 पोटेशियम आयन्स होना ज़रूरी हैं, लेकिन उसमें अभी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो हाइड्रोजन आयन्स यानी दोनों हाइड्रोजन आयन्स को रिप्लेस कर दे. अब उसने क्या किया, उसने सिर्फ एक हाइड्रोजन को पहले रिप्लेस किया जिसकी जगह पर वो खुद आ गया. अब जो रिमेनिंग यानी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और एक हाइड्रोजन ये आ गया और रिमेनिंग जो सब्सटेंस था जो सल्फेट आयन थे वो एज इट इज़ रहे. फिर उसके बाद जो रिमेनिंग हाइड्रोजन था उसने हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर वाटर बनाया यानी H2O. अब जो ये आयन यानी फॉर्मेशन हुई सॉल्ट की, ये क्या है, ये आपका कौन सा सॉल्ट बन गया, ये आपका सॉल्ट बन गया एसिडिक सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट बन गया. क्या नाम है सॉल्ट का, पोटेशियम बायसल्फेट. इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ पर बायसल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी पढ़ा जा सकता है. क्लियर?
another example of acidic salt. For this purpose you need another acid like H3PO4 phosphoric acid along with sodium hydroxide will be taken. Now the acidic salt in this case will be formed by a positive metal ion. When a positive metal ion, that is sodium, replaces hydrogen ions, in this case now the number of hydrogen ions are 3. कितने हाइड्रोजन आयन है? 3 हाइड्रोजन आयन है. H3 का मतलब 3 हाइड्रोजन आयन. और यहाँ पर जब हम 3 हाइड्रोजन आयन्स बना रहे हैं, 3 हाइड्रोजन आयन्स को रिप्लेस करेंगे तो इसका मतलब है कि सिर्फ सोडियम का एक एटम इन 3 हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो सिर्फ एक को ये रिप्लेस करने में कामयाब होगा. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन आयन, यानी अगर एक हाइड्रोजन इसमें से हम निकाल दें और वो हाइड्रोजन मिलेगा जाके हाइड्रोक्साइड के साथ टू फॉर्म वाटर. अगर हम सिर्फ उस वाटर के पार्ट को निकाल दें तो हमारे पास जो रिमेनिंग हाइड्रोजन यहाँ बनते हैं या बच जाते हैं वो हैं H2. तो इसका मतलब है वो सारे के सारे यहाँ पर फॉर्मूला में मौजूद होंगे NaH2 और PO4 के साथ. इसका मतलब है हमारी जो कॉम्बिनेशन बनी वो क्या बनी? एक नए एसिडिक सॉल्ट की बनी. एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस न्यू एसिडिक सॉल्ट इज़ NaH2PO4. So this is another type of acidic salt. Now I am going to write down some of the properties of acidic salt. As I have mentioned only one property and discuss one property with you related to the normal salt. Now what is the property of normal salt? Normal salt are actually when mixed with the litmus solution or when litmus is added to the normal salt or neutral salt, it has no effect. So the normal salts are not affected by litmus. Now some of the properties of acidic salts. So heading is properties of acidic salt after example. So acidic salts turn blue litmus red. This is the first property. Acidic salt क्या करते हैं? Acidic salts turn blue litmus red. ये blue litmus पेपर अगर आपको दे दिया जाए, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. ये आपके पास जो पेपर्स होते हैं ये डिफरेंट कलरेशन में यानी ब्लू और रेड में अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए आपने ये करना है कि अगर आपको एक बीकर में मैं कोई भी एसिडिक सॉल्ट दे दूं या उसका सॉल्यूशन दे दूं. एसिडिक सॉल्ट का फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सॉल्यूशन है और यहाँ पर जो आपके पास एसिडिक सॉल्ट मैंने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल दिया है ये पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट है. क्लियर? सो इस एसिडिक सॉल्ट के अंदर अगर आप ब्लू लिटमस पेपर यानी ये मेरा मार्कर ब्लू कलर का है तो मैं ब्लू ही इसके अंदर डिप कर रही हूँ. तो ये ब्लू लिटमस पेपर है. ब्लू लिटमस पेपर नॉर्मली अवेलेबल होते हैं लेबॉर्ट्री में. तो अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को इस एसिडिक सॉल्ट के अंदर डिप करेंगे तो इसका वो रीजन जो कि पेपर का वो हिस्सा जो कि सॉल्ट के अंदर डिप्ड है उसके अंदर डिप हुआ हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उसका कलर कैसा हो जाएगा? नाउ चेक द कलर ऑफ दैट पार्ट विच इज़ डिप्ड इन एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन. सो इट विल बिकम रेड. वो कैसे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो रेड कलरेशन में आ जाएगा. तो ब्लू लिटमस का जो कलर था यानी पूरा वो ब्लू था, इसको अगर हम पूरा ब्लू कर दें पेपर को तो ये क्या किस कलर में कन्वर्ट हो गया? रेड में. किस वजह से हुआ? क्योंकि जब भी आप एसिडिक सॉल्ट्स के अंदर ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये एक शनाख्त है यानी एक रिकग्निशन है, ये एक आइडेंटिफिकेशन है आपके एसिडिक सॉल्ट की. Now the second property of acidic salt that whenever an acidic salts, जब भी acidic salts react करते हैं किसके साथ? bases के साथ. react with bases they form
क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट, हमेशा नॉर्मल सॉल्ट्स ही बनाते हैं। दिस इज़ अनदर प्रॉपर्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट को अगर आप, जो कि एसिडिक सॉल्ट है, अगर आप इसको रिएक्ट करवाएं बेसिस, किसी भी बेस के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस, तो ये क्या फॉर्म करेंगे? ये उसी तरीके से जैसे आपको मैंने बताया K2 एंड SO4, K2SO4 अलॉन्ग विद OH यहाँ से लें और यहाँ हाइड्रोजन बच गया, मिल के बना रहे हैं ये H2O। सो यहाँ पर जो K2SO4 है ये क्या है बेटा? ये आपका एसिडिक, यानी आपका एसिडिक सॉल्ट से बनने वाला नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट है, जबकि ये कौन सा सॉल्ट है आपका? ये आपका एसिडिक सॉल्ट है। तो एसिडिक सॉल्ट क्या करते हैं? एसिडिक सॉल्ट जब किसी बेस के साथ मिलते हैं या रिएक्शन करते हैं तो वो नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं अलॉन्ग विद वाटर। थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट्स। थर्ड कैटेगरी आपके सॉल्ट की आती है बेसिक सॉल्ट्स की। Now, what are basic salts and how they are formed? So, definition first. Actually, the formation of basic salt is dependent on hydroxide ions. Hydroxide ions, OH ions, which are also called. So, basic salts are formed by the incomplete neutralization. Which method is this? Incomplete neutralization किसे कहते हैं? Neutralization is that method in which acid reacts with base to form salt and water. So an incomplete neutralization process, या इस प्रोसेस के नतीजे में किसकी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है? ऑफ अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। और ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन कौन कर रहा है? बाय एन एसिड। ये एसिड के ज़रिए हो रही है। तो एसिड के ज़रिए होने वाली एक ऐसी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन जिसमें बेस की पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी मीन मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट, मैनी हाइड्रोक्साइड आयन विच आर प्रेजेंट इन बेस आर एक्चुअली नॉट कम्प्लीटली रिप्लेस्ड। इसमें मुकम्मल तौर पे वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। किस तरीके से? एग्जाम्पल्स। Now example will clear you this definition. So the first example in this case is aluminium hydroxide, ALOH taken thrice. So this is a polyhydroxy base. इसको polyhydroxy base क्यों कह रहे हैं? As you can see, I am writing 3 once again here, and 3 hydroxide ions are representing here that 3 hydroxyl ions इस आपकी बेस में मौजूद हैं। So this base is called polyhydroxy base, and when polyhydroxy base reacts with an acid, for example take any acid of your choice, HCl, this is an acid, then what acids do in this case? In this case, acid normally responsible for incomplete neutralization of a polyhydroxy base. वो क्या कर रहा है? एसिड जो है वो बेस की नामुकम्मल जो है वो न्यूट्रलाइजेशन करेगा। नामुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन से क्या मुराद है कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड कितने हैं? पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी, ये जहन में रखिएगा, और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड आइंस। अब बेस के अंदर जितने भी हाइड्रोक्साइड आइंस हैं, यानी कई तादाद में जो हाइड्रोक्साइड आइंस हैं, उनकी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन जो एसिड के ज़रिए होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि एसिड जो है वो यहाँ से यानी रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन ये रिप्लेस होके क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। जो रिमेनिंग एसिड के पास क्लोराइड आयन है वो इस बेस में शामिल हो जाएंगे और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड यहाँ से रिमूव होके वाटर बनाएंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड कितने हैं? काउंट करें, 1 2 and 3।
इसका मतलब है ड्यू टू दीज 3 हाइड्रोक्साइड आइंस दिस बेस AlOH टेकन थ्राइस इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। ये क्लियर हो गई बात। अब हाइड्रोजन क्लोराइड यानी ये एसिड 3 हाइड्रोक्सिल आयन में से तकरीबन एक को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि वो तीनों को नहीं कर सकता। तो अगर वो तीनों को करता तो ये होती कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। उसने सिर्फ एक को न्यूट्रलाइज किया, इसलिए इसको कहा जाता है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ये क्लियर हो गई। अगर वो 2 को भी न्यूट्रलाइज करता तो भी ये इनकम्प्लीट होती। अगर कंप्लीट का वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे तो कब? जब हाइड्रोजन इन एन एसिड कम्प्लीटली, यानी एसिड मुकम्मल तौर पे पूरे के पूरे हाइड्रोक्साइड आयन को इस बेस में से न्यूट्रलाइज कर देता, रिप्लेस कर देता, ये भी आप कह सकते हैं, टू मेक वाटर एंड सॉल्ट। तो यहाँ पर जब आपके एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्साइड से मिलेगा तो ये क्या बनाएगा? ये आपका वाटर बना देगा। ये चीज़ तो अलग होगी। लेकिन अब जो यहाँ पर सॉल्ट बनने जा रहा है वो कौन सा है? वो बेसिक सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। कैसे बना? ध्यान से देखिएगा। यहाँ से एल्युमिनियम लिया आपने, अब यहाँ से कितने हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो वाटर की फॉर्मेशन के लिए चले गए। एक हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो रिप्लेस हो गया। कितने बच गए? आपके 2 हाइड्रोक्साइड आयन बन गए। सो AlOH टेकन ट्वाइस। अब रिमेनिंग सब्सटेंस जो एसिड में से बचा वो था Cl, तो क्लोराइड आयन। तो ये आपका कंप्लीट हो गया बेसिक सॉल्ट। अनदर एग्जाम्पल इज नाउ related to lead hydroxide PbOH taken twice, which is a base, that is a polyhydroxy base, plus an acids, for example acetic acid CH3COOH। ये आपकी बेस है, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, और ये आपका एसिड है। अब इन दोनों की जो एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है जो कि इनकम्प्लीट होगा, उसमें क्या होगा कि इसके पास कितने आइंस हैं, कितने हाइड्रोक्साइड आइंस हैं? 2 हैं। OH2 का मतलब 2 हाइड्रोक्साइड आयन है। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा और यहाँ से एक हाइड्रोक्साइड रिमूव होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये अलग हो गया। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग सब्सटेंस फॉर्म होगा दैट विल बी अ बेसिक सॉल्ट। अब वो कैसे फॉर्म होगा? लेट्स चेक नाउ। स्टार्टिंग फ्रॉम Pb, यहाँ पर आ गया आपका लेड। Pb इज़ द सिंबल फॉर लेड। कितने हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेस किए? एक। तो इसका मतलब है एक हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर आपका बच गया, क्योंकि एक जो है वाटर फॉर्मेशन के लिए मूव कर गया। रिमेनिंग सब्सटेंस जो एसिड में से बचा आफ्टर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या बचा? एसीटेट आयन बचा, CH3COO। एंड योर नेक्स्ट बेसिक सॉल्ट इज PbOH CH3COO, which is lead hydroxy acetate. Lead hydroxy acetate. Now another example related to the formation of basic salt. It is zinc hydroxide. Again 2 hydroxide ions are present, so I am writing here 2 hydroxide ion, and due to the presence of hydroxide ion, zinc hydroxide is a polyhydroxy base which undergoes incomplete neutralization by an acid, and the acid is nitric acid भी ले सकते हैं आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चॉइस इज़ योर्स, जो रिएक्शन आपको जल्दी याद हो जाए। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से अगेन वही करेंगे हम, हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया, एक हाइड्रोक्साइड यहाँ से ले लिया, क्या बना आपका? वाटर बना। व्हाट इज़ द रिमेनिंग सब्सटेंस? रिमेनिंग चीज़ क्या बची? यहाँ से जिंक बचा, यहाँ से एक हाइड्रोक्साइड बचा, सो जिंक हाइड्रोक्सी हो गया। जिंक हाइड्रोक्सी के साथ आपके पास और क्या बचा? दूसरे एसिड में क्या बचा? ये एसिड था आपका, इसमें से क्लोराइड बचा, सो Cl आपने यहाँ लिख दिया। ये क्लियर होगी बेटा बात? तो यहाँ पर आपके पास जो सॉल्ट बना, इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट एंड हैविंग नेम जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड। सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ बेसिक सॉल्ट।
Now the properties or characteristic properties of basic salts. Basic salts की खुसूसियात. So properties of basic salt. Basic salts. Related to the properties, we first introduce the property that always the basic salts react with acid to form neutral salts, or also called the normal salts. For example, I'm taking example one by one which I have made in the previous point, like aluminium hydroxychloride, which is a basic salt when react with hydrochloric acid, because according to the property of basic salt react with acid to form normal salt. So now we are going to prepare normal salt. So this is a basic salt, और हम बेसिक सॉल्ट को एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, और एसिड के साथ रिएक्शन के नतीजे में ये क्या बना रहा है, कौन सा सॉल्ट बनेगा, नॉर्मल सॉल्ट. कैसे, यहाँ से हाइड्रोजन को आप हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ अटैच करेंगे, और द रिमेनिंग सब्सटेंस विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड इज़ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड. हाउ डज़ इट हैपन, कैसे बना ये, आपने कैसे ये फॉर्म किया, क्योंकि आपने एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया, एक यानी हाइड्रोक्साइड आपने यहाँ से रिमूव किया, हाइड्रोजन को आपने यहाँ से रिमूव करके क्या बना दिया, वाटर बना दिया. तो यहाँ कितने आइंस थे हाइड्रोक्सिल के, 2 आइंस थे, और यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल आइंस ने मिलकर वाटर बनाया. अलॉन्ग विद इट जो रिमेनिंग आपके पास सब्सटेंस बचा वो था Al, OH एक बचा और Cl, लेकिन ये Cl कंबाइन कर रहा है दूसरे Cl के साथ टू फॉर्म Cl2. फर्दर टू प्रोसीड दिस रिएक्शन, आपने इस रिएक्शन को मज़ीद आगे लेके जाना है. कैसे, सो रिएक्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सीक्लोराइड वंस अगेन Cl2 प्लस, यानी इस पूरे आपने सॉल्ट को लेके जाना है दोबारा रिएक्शन के लिए विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ दिस टाइम अब आपका क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयंस कितने बचे हुए हैं, 1. यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है. तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर क्या बनाएंगे, ये वाटर बना देंगे, यानी ये फॉर्मेशन, यानी ये हिस्सा अलग हो गया. अब जो रिमेनिंग सब्सटेंस आपका बचा वो क्या है, एल्यूमिनियम बचा, यहाँ से क्लोरीन के 2 एटम्स हैं और 1 एटम मिलके क्या बना रहे हैं, Cl. कितने बने, 2 + 1 3, सो AlCl3. सो दिस सॉल्ट इज़ कॉल्ड द नॉर्मल सॉल्ट. ये अब आपका नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा. वाई, बिकॉज these one of the property of the basic salt, whenever the basic salt react with an acid they form normal salts. Another property of basic salt while reacting it with any acid, so it is lead hydroxy acetate CH3COO. So when this basic salt reacts with an acid like acetic acid CH3COOH, what happens, that salt and water is formed. And which type of salt is formed, normal salt. So for the preparation of water, first we remove hydroxide ion from this basic salt. So hydroxide ion will be removed, and from an acid hydrogen is removed to form water, H2O. So after the removal of water, the remaining substances which are left behind will be merged together, combined together to form normal salt. For example, lead from here along with acetate ion CH3COO. And not only this, but also there is one more acetate ion present in acid. So 2 acetate ion are combining together. So I am not writing it twice, I am making here CH3COO taken twice. So in this way, another type of salt which is formed here is called a normal salt, along with the formation of water. So this is another type of method of neutralization in which acid react with
acid react with base or with base, basic salt, to form normal salt and water. And the last example that is related to the properties of basic salt is example of basic salt first, zinc hydroxynitrate. And the reaction of this basic salt with an acid like nitric acid, it results in the formation of again normal salt and water. So for water we will do the same thing. Hydroxide ion will be removed from here and hydrogen will be removed from an acid to form water, while the remaining substances are zinc, and there are two nitrates are left, one in basic salt and one in acid. So NO3 will be taken twice. So zinc nitrate is formed, which is an example of normal or neutral salt. So these are some of the salts or type of salts, including normal salts, acidic salts and basic salts. In the next lesson, inshallah, we will able to complete the types of salt with the remaining salts such as double salts, mixed salts and complex salts. So Allah Hafiz.